Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Our topic is related aggregate to national income. हम national income के related aggregates के बारे में पढ़ रहे हैं. कल मैंने आपको बताया था. Yesterday we discussed about GDP, that is gross domestic product. The formula of GDP on MP equals to C plus I plus G plus X minus M. This is the first concept we just studied at yesterday. The second one is GNP on MP. So when we added GDP or MP plus NFIA, अगर हम GDP MP में क्या ऐड कर देते हैं NFIA, so we get the GNP on FC. ओके, एक फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं हम GNP MP के लिए C प्लस I प्लस G प्लस NFIA और प्लस X माइनस M. The third concept is NDP on MP. What is NDP? That is net domestic product. How we get it? NDP MP equals to GDP MP minus depreciation. Okay, when we deducted depreciation from the gross, we get the net one. Okay, next one is that is NNP. NNP on market prices. So GNP on market prices, we deducted the depreciation. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट जो आपका था दैट इज GNP ऑन, अगर हम निकालना चाहें फैक्टर कॉस्ट, और आई एम जस्ट हैविंग GNP ऑन मार्केट प्राइसेस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन FC एंड MP. अगर हमें मार्केट प्राइसेस दे रखी हैं और हमें निकालना क्या है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, सो वी हैव टू डिडक्ट IT. IT means indirect taxes and added subsidies. So we get the factor cost. ठीक है? Yes, ma'am. So we just studied yesterday the concept of domestic, national, net, and the factor cost and market prices. Okay, clear? आगे बढ़े? Yes, ma'am. Okay. Now today our topic is private income. First of all, I want to clear what is private income. As you know, India is a mixed economy. Follow the mixed economy. There is the private sector is running just parallel to the public sector. यहाँ पर public sector और private sector दोनों joint venture के रूप में काम करते हैं. दोनों एक दूसरे के साथ parallel चलते हैं. So the national income is generated from the private sector and the public sector. So when I found out the private sector income, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं private sector की income निकालूं, तो income generated in the private sector and the getting income from the other sources also. यानी जो private sector उसने कितनी income generate की है और किन-किन sources से उसने income ली है, उसको हम यहाँ add करेंगे. As you know, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट इनकम की, तो NNP FC यहाँ पर हम लेंगे. व्हाट इज NNP FC? दैट इज इक्वल्स टू NI. ये क्लियर है आपको? NNP FC इक्वल्स टू NI. क्लियर? Yes, ma'am. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे
प्लस ट्रांसफर पेमेंट। यहां टीपी का मतलब हो गया ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अब्रॉड ऑल्सो अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको ट्रांसफर पेमेंट मिले वो, इसके साथ साथ आपको क्या मिले हैं, अब्रॉड से भी जो भी ट्रांसफर पेमेंट मिले हैं उसको भी आप इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, प्लस आप इसमें करेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, इट इज IPD, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर? ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. और इसमें से माइनस करेंगे CSS। और व्हाट इज CSS? दैट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, और माइनस PPU, दैट इज PPU का मीन यहां पर हो गया सरप्लसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमें अगर प्राइवेट इनकम निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, NNPFC which is equals to NI, so we have to add TP, transfer payments which the private sector get from the government or the abroad one, plus IPD, interest payment on public deposits, and we deducted CSS, contribution to social security, and minus PPU, that is surpluses of पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर हो गया प्राइवेट इनकम आपको? मैम, ये सरप्लस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? सरप्लसेस क्या हो गया, जैसे जो उनको एक्स्ट्रा, मतलब जैसे आप यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड योर इनकम इन 5 मेन फैक्टर्स। ठीक है, आपने क्या किया वहां पर 5 मेन फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे? लैंड को यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरह से हर फैक्टर को आप पेमेंट करते हैं। तो सरप्लस कैसा हो गया, जो उसका सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच गया। ठीक है, दैट मीन प्रॉफिट। जस्ट लाइक द प्रॉफिट। ओके मैम। ओके, यहां तक क्लियर हो गया प्राइवेट इनकम? यस मैम। यस मैम। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपकी है वो है पर्सनल इनकम, दैट इज ऑल्सो PI। ठीक है, अब ये जो पर्सनल इनकम है जो एंटरप्रेन्योर की है, अब उसमें क्या क्या शामिल करेंगे आप, तो PI इक्वल्स टू आपका NNPFC तो है ही। ठीक है, NNPFC तो आपके पास रहेगा ही, क्योंकि आप किस में से कर रहे हैं, NNPFC किसके बराबर है, नेशनल। NNPFC किसके बराबर है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बराबर, तो इट इज जस्ट इक्वल्स टू NI। ठीक है, अब इसमें हम माइनस करेंगे UCP। अब व्हाट इज UCP? दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ लेकिन कॉर्पोरेट ने आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एज अ वीयर टीयर किस तरह से भी रख लिया उसने अपने पास, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, माइनस करेंगे आप टैक्सेस जो कॉर्पोरेट पे लगते हैं, तो CT।
कॉर्पोरेट टैक्सेस। आपने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया गया, ठीक है। माइनस आप इसमें से करेंगे CSS, अभी आपने पढ़ा व्हाट इज CS, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे आप TP, जो भी आपको ट्रांसफर पेमेंट मिले हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट से जो आपको मिले प्लस एब्रॉड से जो, ये दोनों को क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर लेंगे। कौन से ट्रांसफर पेमेंट से ये, कि चाहे आपको वो गवर्नमेंट से मिले और चाहे वो आपको एब्रॉड से मिले, ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे आप IPD। व्हाट इज IPD? तो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट्स, डेबिट्स जो है आपकी वो आ जाएगी इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेबिट्स जितने भी हैं वो आपको इसमें से इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये आपकी क्या हो गई, पर्सनल इनकम, ठीक है। क्या करेंगे हम, NNPFC जो आपकी NI के बराबर है, उसमें UCP अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट का जो प्रॉफिट है उसे आप माइनस करेंगे। माइनस कॉर्पोरेट पे जो टैक्सेस लगे हैं, क्योंकि टैक्सेस उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसकी इनकम नहीं है, माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और इसमें ऐड करेंगे कि उस व्यक्ति को जो पर्सनल ट्रांसफर पेमेंट्स मिले, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले हो चाहे वो एब्रॉड से मिले हो, और प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज PDI। यहाँ फॉर्मूला देखिए PDI। अब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो गया, कि जो आपकी पर्सनल इनकम है, ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो डिस्पोजेबल यानी खर्च करने योग्य इनकम। तो जो आपकी इनकम थी, पर्सनल इनकम थी, उसमें से आपको क्या करेंगे, टैक्सेस को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस आप इसमें करेंगे पर्सनल जितने भी आप पर टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब पर्सनल टैक्सेस कैसे हो सकते हैं, पर्सनल टैक्सेस, या इसको हम डायरेक्ट टैक्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने डायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करेंगे, अब टैक्सेस में फीस और फाइन भी आ सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने बिजली का बिल लेट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का या वाटर सप्लाई बिजली आपने लेट किया, तो उसमें पेनल्टी आती है, दैट इज फाइन्स, ठीक है। तो जो भी फीस, या मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ किया, खर्च किया, तो फीस कहीं पे पेमेंट की, तो वो भी इसमें आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी पर्सनल टैक्सेस आप पर लग रहे हैं, चाहे वो टैक्स के रूप में है, फीस के रूप में है, फाइन्स के रूप में, जब आप उसे निकाल देंगे तो आपका क्या बच जाएगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। ओके, यस मैम। इसके बाद आता है अपना PCI। PCI ये तो आपको वेल नोन है, पर कैपिटा इनकम, ये तो हम 9-10 से ही पढ़ रहे हैं। तो PCI का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नेशनल इनकम अपॉन टोटल नेशनल पॉपुलेशन। इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, जितनी भी उसकी, ठीक है। जब किसी देश की नेशनल इनकम में उसकी पॉपुलेशन का भाग लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय वहां पर हमें मिल जाती है। क्लियर? यस मैम। चलिए, अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज NDI, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी एक देश के पास खर्च करने योग्य कितनी इनकम है,
वो तो थी हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसलिए हमने उसमें से टैक्सेस को माइनस किया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जो डिस्पोजेबल, नेशनल डिस्पोजेबल मतलब कि गवर्नमेंट के पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही NI हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया NDI इक्वल्स टू NI, या फिर हम कह सकते हैं NNP ऑन FC। ठीक है, NNP और FC को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और जितने भी टैक्सेस हैं, ठीक है, आपके टैक्सेस हैं, कौन से टैक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर, कौन से टैक्सेस नेट हैं? इनडायरेक्ट। NIT। अब व्हाट इज NIT? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, नेट इनडायरेक्ट, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको हमने यहाँ पर प्लस किया। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? कि जो IT है उसमें से आपने सब्सिडीज को पहले से ही डिडक्ट कर रखा है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इसमें करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, NTPW। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक देश के पास खर्च करने योग्य कितनी आय, हाउ मच मनी अ नेशन इज हैविंग फॉर द डिस्पोजेबल और एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या किया, NI में प्लस किया NIT, जिसमें हमने सब्सिडीज को पहले से ही इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिडक्ट किया, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्या वो आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? Yes, ma'am. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस मैम। ले लिया? अभी आपके कॉन्सेप्ट्स एग्रीगेट्स हो गए नेशनल इनकम के, है ना? अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इसमें आपको आइटम्स दे रखे हैं। सबसे पहला जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज GDP ऑन MP। ठीक है, वो आपको दे रखा है 4 लाख करोड़। ठीक है, और आपको X माइनस M दे रखा है, वो दे रखा है 10,000 रुपीज करोड़। उसके बाद दे रखा आपको D यानी डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10,000 रुपीज करोड़। फिर आपको दे रखा है IT इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं दैट इज 10,000 ऑल्सो। फिर आपको सब्सिडीज दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है 5,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन दे रखी है 100 करोड़। फिर आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यानी पब्लिक सेक्टर की आपको इनकम दे रखी है 10,000 रुपीज करोड़। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन नॉन डिपार्टमेंटल लाइक द SBI, तो प्रॉफिट दे रखे हैं
गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंट्स। इसमें दे रखा है आपको 10,000। फिर दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, यानी कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी हो गया ये। कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन फॉर्म ऑफ पेंशन, पेंशन के रूप में, यानी ये सोशल सिक्योरिटी हो गई, दैट इज 5,000। नेक्स्ट दे रखा आपको रिसिप्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इट्स एम्प्लॉयड फॉर द करंट ईयर, रिसिप्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू इट्स employee for current year। ठीक है, ये दे रखा आपको ₹5,000। करंट ईयर रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, करंट ईयर रिसिप्ट्स फ्रॉम एब्रॉड कर देते हैं, टू एम्प्लॉइज, यानी ये हो गया करंट ट्रांसफर हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज 2,000। नेक्स्ट दे रखा आपको इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट लोन पे इंटरेस्ट दे रखा है आपको 3,000 रुपीज करोड़। सेविंग ऑफ प्राइवेट कंपनीज, कंपनीज की सेविंग्स दे रखी है आपको 10,000 रुपीज करोड़। और आपको इनकम टैक्स ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल का हो गया मतलब डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ये आपको दे रखा है 10,000 रुपीज करोड़। और फी दे रखी है पॉपुलेशन की, तो दैट इज 4,000। और दे रखा है फाइन्स, जो फाइन्स दे रखे हैं दैट इज 2,000। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनडीपी, एनडीपी ऑन एमपी। क्या निकालना हमें, सबसे पहले एनडीपी ऑन एमपी। फॉर्मूला बोलिए एनडीपी ऑन एमपी का, जीडीपी ऑन एमपी माइनस, बोलो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमको जीडीपी दे रखी है, इसमें एमपी पे दे रखी है, जीडीपी दे रखी है, यस मैम। कितनी है, यस मैम। 4 लाख। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 10,000। तो माइनस 10,000। ठीक है, क्या आ गया अपना एनडीपी, कितना आ गया, कितना आया, 3,90,000। यस मैम। है ना, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया 10,000 का, तो 3,90,000 हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा एनडीपी आ रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, यस मैम। ठीक है। दूसरा वो जो हमसे मांग रहा है दैट इज, अब वो हमसे कह रहा है कि जीएनपी ऑन एमपी, जी
NP ऑन MP। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है, GDP, तो हम कैसे निकालेंगे, GDP MP में क्या ऐड करेंगे, NFIA NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी दे रखी है आपको, आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी है, 10,000। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम, तो GDP कितनी हो गई, 4 लाख प्लस 10,000, तो हमारे पास GNP कितनी आ जाएगी, 4,10,000। ठीक है, तो अपने पास आ गया 4,10,000। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, NNP ऑन MP। ठीक है, NNP MP क्या है, GNP MP minus depreciation। तो GNP MP, GNP MP अपना निकल गया, क्या निकला था, 4,10,000। 4,10,000। इसमें क्या करेंगे, माइनस डेप्रिशिएशन। Depreciation तो 4 लाख डेप्रिशिएशन कितना है अपना बेटा, 10,000 10,000। अभी हमने देखा डेप्रिशिएशन हमारा 10,000 है, तो तो 4 लाख हमारा जो NNP है MPO कितना आ गया वापस, 4 लाख आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो निकालना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस अब मैम। नेक्स्ट Yes, ma'am. आपको जो निकालना है दैट इज NNP FC, NNP FC निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, NNP FC, और आपको क्या दे रखा है, GNP ऑन MP दे रखा है, या NNP और MP भी निकल आया आपका, तो उससे ही निकाल लेते हैं हम। NNP MP दे रखा है, आ गया ना अपना 4 लाख आ गया। हमें क्या निकालना है, NNP FC, यानी जो MP है उसको किस में कन्वर्ट करना है, FC को क्या करेंगे, Indirect taxes minus indirect taxes plus subsidy। माइनस IT प्लस सब्सिडीज। तो NNP MP हमारा कितना आया था, 4 लाख। IT कितना है अपना, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10,000। 10,000, और सब्सिडीज कितनी है, 5,000 5,000। ठीक है, यानी NIT कितना हो गया, 5,000। 10,000 गवर्नमेंट ने लिए, 5,000 वापस कर दिए, तो कितना हुआ, 5,000 माइनस करोगे। यस मैम ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया अपना, इसमें से कितने माइनस करोगे, 5,000। Yes, ma'am। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गया, अगर 5,000 तो 3,95,000। ओके, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। यस मैम ओके, अब आपको निकालना है प्राइवेट इनकम निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा NNP FC है, ये भी आया ना NNP FC, इसमें से हमें क्या करना था, फॉर्मूला याद करिए, इसमें प्लस करना है इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्लस इनकम फ्रॉम जो भी आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है। तो आपकी इनकम कितनी दे रखी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, अभी देखा था ना अपन ने, 10,000। 10,000। तो हमने लिखा 3,95,000 प्लस 10,000। ठीक है, और प्लस इसमें करेंगे आप इनकम फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इनकम नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अभी आपने देखा नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इनकम कितनी थी, 10,000 10,000, तो प्लस 10,000। ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे आप कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज, प्लस कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज कितना था, 5,000 5,000, दैट इज 5,000।
ठीक है, उसके बाद आप ऐड करेंगे करंट रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्या रिसिप्ट हुआ, कितना रिसिप्ट हुआ गवर्नमेंट से? 3000। 3000। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे करंट 2000 है ईयर मैम। फॉरेन। हाँ 2000 है। 2000 करंट रिसिप्ट 2000 ही। 2000। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। करंट ईयर फॉरेन कंट्रीज से आपने कितना लिया? फ्रॉम द अब्रॉड कितना है? 2000। अब्रॉड से कितना है? करंट ईयर रिसिप्ट फ्रॉम द अब्रॉड कितना है? 2000। तो हमने प्लस कर दिया 2000। मैम इससे पहले क्या ऐड करा था मैम? इससे पहले हमने किया था करंट रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से करंट ट्रांसफर आपको क्या मिला? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, टीपी, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द अब्रॉड, दोनों मिक्स करेंगे। तो इसने अलग अलग दे रखा है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो मैम गवर्नमेंट से आपने 2000 क्यों करा मैम? करंट ट्रांसफर फ्रॉम द 5000 है ना मैम, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज 5000 करोड़। हाँ करंट ईयर रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय 5000 चाहिए। दैट इज 5000। ठीक है, 2000 क्या हो गया? जो रेस्ट ऑफ वर्ड से आपको मिला। और इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट्स पे कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट कितना था अपना? इंटरेस्ट रिसीव ऑफ गवर्नमेंट 3000। कितना है इंटरेस्ट? Yes, ma'am. 3000। तो हमने प्लस किया इसमें 3000। ठीक है, ऐड करें 10,000। 10,000 कितना हो गया? 20। यस मैम। ठीक है, और 25, 30, 32 और 35 कितना हो गया? 35। 35। तो 3,95,000 में ऐड कर देंगे 35,000। 4,30,000। ठीक है, 4,30,000। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? ये 4,30,000 रुपीज करो। ओके, यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। ओके, अब हमने यहां तक निकाल लिया। अपना क्या बच गया है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पहले पर्सनल इनकम, ये तो प्राइवेट निकाली थी, अब निकाल रहे हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या था? प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग ऑफ कंपनीज और माइनस टैक्सेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड देख रहे थे ना, तो सेविंग ऑफ कंपनीज और टैक्सेस। तो हमारा जो ये आया है 4,30,000, ये क्या आ गया है? प्राइवेट इनकम। जब प्राइवेट इनकम में से आप माइनस करेंगे जो उनकी सरप्लसेस है, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे? उस पर लगने वाले टैक्सेस। अब देखिए सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज कितनी है? कितनी है? 10,000। ठीक है, और उसके बाद उस पर लगने वाले टैक्सेस। ठीक है, सेविंग हो गई 10,000 और टैक्सेस हो गए 15,000। कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस कहाँ है? कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये 10,000। तो टैक्सेस कितने हैं? 10,000 है
और आपको सेविंग्स भी 10,000 है, ठीक है। कितना है, टैक्सेस कितने हैं, टैक्सेस कितने बेटा, 10,000. और सेविंग्स भी कितनी है, 10,000. ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो प्राइवेट इनकम है उसका फॉर्मूला क्या हो गया। अब हम बात करें पर्सनल इनकम की, तो जो हमारी प्राइवेट इनकम है ये है प्राइवेट इनकम, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे उसके सरप्लसेस, ठीक है, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और माइनस यू कॉर्पोरेट टैक्सेस, सीटी माइनस सीटी, ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेट इनकम कितनी आ गई थी, 4,30,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 और माइनस 10,000, यानी टोटल कितना माइनस हुआ, 20,000। तो 4,10,000 आपका रिमेनिंग रह गया। ये आपकी क्या हो गई है, पर्सनल इनकम हो गई है। क्लियर। Yes, ma'am. और यदि मुझे निकालना है पीसीआई, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, तो क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, एनआई अपॉन पी, एनआई अपॉन पी, यही फॉर्मूला था। यस Yes, मैम. ma'am. अब इसमें एनआई क्या है बेटा, बताओ, एनआई किसके बराबर होती है, NNPFC. एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी अपना कितना आया था, 3,95,000। Yes, ma'am. तो हम क्या लिखेंगे, 3,95,000 को किससे करेंगे, 100 करोड़ से, ठीक है। कितना आ गया, 3,000। 100 करोड़ से क्यों किया मैम? पॉपुलेशन 100 करोड़ थी ना आपकी, ये रहा। है अच्छा. है ना, क्योंकि पॉपुलेशन से करेंगे तो पॉपुलेशन 100 करोड़ है, ठीक है ना। तो आपका 3,95,000 करोड़ है, ये भी करोड़ में, ये भी करोड़ में, आपने इसको किया तो 3,950 करोड़ आपके पास पर कैपिटा इनकम हो गई, ठीक है। Yes, यस. ma'am. ठीक है। अब लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट बचा है दैट इज पीआई, पीसीआई हो गया। अब बचा आपका पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल जो हमारी इनकम निकली थी, ठीक है, कितनी निकली थी, 4,10,000। अगर मैं निकालना चाहती हूँ पीडीआई, ठीक है, अगर मैं पीडीआई निकाल रही हूँ, ठीक है, पीडीआई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरी पर्सनल इनकम है, ठीक है, उसमें से माइनस क्या कर दूंगी मैं, टैक्सेस, Direct taxes. ठीक है। अब आपके टैक्सेस कितने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, कितने हैं, 10,000। Yes, ma'am. और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा आपको दे रखा है फाइन्स, मैम फीस और फाइन्स भी तो हाँ, ठीक है। तो ये सब माइनस हो जाएंगे, तो 10,000, 4,000 और 2,000 कितना हो गया, 16. 16,000। किसमें से माइनस करोगे, 4,10,000, 4,10,000 में से आपने कितना माइनस किया, 16,000, ठीक है। कितना आ गया, कितना हो गया, 3 लाख, कितना आया, 3,94,000, सही है। Yes, ma'am. यस मैम. 3,94,000, ये आपका क्या आ गया, पीडीआई, ओके। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका न्यूमेरिकल ये पूरा हो गया सारे फॉर्मूले से, सारे एग्रीगेट से, ठीक है। ले लिया, Okay, ma'am. ठीक है। एक बार आप इसको कर कर देखना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगी, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, Nice, ma'am. थैंक यू डा।